Assalamu alaikum, dear student. I have already taught you about proteins, but still I feel you people are deficient of understanding about amino acids. So I tried to compile a easy way to data about amino acids and proteins. So essential and non-essential amino acids, there are approximately 28 commonly known amino acids that are combined in various ways to create 150 or more other intermediates inside the body, as well as the more than 40,000 protein known so far to increase. 28 नोन अमाइनो एसिड जो कि खुद ही इंटरचेंजेबली आपस में स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं और बनाते हैं तकरीबन 150 अमाइनो एसिड तक. The essential amino acid are those that our body cannot synthesize in sufficient quantities to satisfy the nutritional requirement for good health, and that they must be included in the diet. Like body cannot synthesize, but and we have to take those amino acid through diet. Although all amino acids are essential, but the body which the body cannot synthesize are called as that they should essentially present in our diet. The 9 essential amino acids are histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan, and valine. Their best sources are meat, fish, fowl. Fowl mean birds, eggs, and dairy products. Why they have said about the animal sources? Mostly animal sources are contain these essential amino acids, and mostly please wait a minute. In addition, cysteine or cystine and tyrosine sometimes classified as non-essential amino acid, लेकिन ये तकरीबन essential cysteine जो है इसको normally essential amino acids में ही लेकर आते हैं, क्योंकि ये जो है हमारी बॉडी जो है इसको उस अमाउंट में नहीं कर सकती सिंथेसाइज, लेकिन ये फिनाइल एलानिन और मेथियोनिन इसके इनके प्रिकर्सर्स हो सकते हैं सिस्टीन के. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है द नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर एलानिन, आर्जिनिन, एस्पारजिन, दोनों एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सीरिन एंड टॉरिन. Processes of assembling amino acid to make protein and of breaking down protein into individual amino acid for the body's use are continuous one. यानी कंटिन्यूसली आपकी बॉडी में अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन बना रहे हैं, और कंटिन्यूसली बॉडी के अंदर जो है वो प्रोटीन जो है उसकी ब्रेकिंग डाउन भी होती जा रही है. यानी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का process continuously होता जा रहा है. When we need more enzyme proteins, the body produces more enzyme proteins. When we need more cells, the body produces more proteins for cell. मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जो हेरिडिटरी मटेरियल है ना हमारी बॉडी में, दैट वो जो जीन सीक्वेंस है, वो जीन सीक्वेंस जो है ना वो अल्टीमेटली जो बनाता है, आप प्रोडक्ट बनाता है वो प्रोटीन बनाता है. ठीक है, वो ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन का वो जो सारा प्रोसेस है ना, दैट इज एक्चुअली मेंट फॉर प्रोटीन मेकिंग. तो प्रोटीन मेकिंग इतना क्रुशियल है कि आपका सारा जिनोम जो है वो that is meant for making protein, that is meant for making peptide bond, that are meant to making the peptide chains, right? तो ये इतना यानी प्रोटीन हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा क्रूशल मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी वाइटल है. दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड एज द नीड अराइजेस. Should the body become depleted of its reserve of any of the essential amino acids, it wouldn't be able to produce the proteins that require those amino acids. तो वो जो अगर कोई एक अमाइनो एसिड भी essential amino acid हमारी बॉडी में डेफिशिएंट है तो वो पर्टिकुलर प्रोटीन हमारी बॉडी में नहीं बनेगी जिसमें वो essential amino acid बनना था. Even one essential amino acid missing, the body cannot continue proper protein synthesis. तो आप खुद सोचें कि आपके जेनेटिक हेरिडिटी मटेरियल ने प्रोटीन की मतलब कोडिंग मौजूद है, लेकिन अगर आपके पास रॉ मटेरियल ही ना, आपके पास जो है वो मिस्त्री आ गया है, आपके पास कॉन्ट्रैक्टर है, नक्शा है, आपके पास जो है वो मजदूर है, सारा कुछ है, लेकिन अगर आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, अगर आपके पास ब्रिक्स ही नहीं है, अगर आपके पास सैंड नहीं है, सीमेंट नहीं है, तो आप बिल्डिंग कैसे बना सकते हैं? सिमिलरली
जो है आपके पास अगर एक भी अमाइनो एसिड वो वाला मिसिंग है, दैट इज़ वाई डाइट के अंदर जो है वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, दिस कैन लीड टू लैक ऑफ वाइटल प्रोटीन इन द बॉडी। अगर सपोज कोई भी ऐसा एंजाइम जो कि आपके मेटाबॉलिज्म में बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस एंजाइम को बनाने के लिए जो अमाइनो एसिड्स जो हैं चाहिए, अगर वो हमारी बॉडी में डिप्लीट हो जाएं, तो वो इसका मतलब है वो मेटाबॉलिज्म में वो वाला स्टेप भी स्किप हो जाएगा। तो वो स्किप नहीं हो जाएगा, बल्कि वो वहां तक पहुंच के वो कैटलाइज वो रुक जाएगा, वो पूरा सिस्टम जो है, पूरी चेंज ऑफ रिएक्शंस जो है वो एक एंजाइम के ना होने की वजह से रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। सो विच कैन कॉज प्रॉब्लम्स रेंजिंग फ्रॉम इनडाइजेशन टू डिप्रेशन टू स्टंटेड ग्रोथ, यानी इनडाइजेशन से वो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, डिप्रेशन भी हो सकता है उसकी, और that ultimately lead towards stunted growth और जो भी हैं। Many factors can contribute to deficiencies of essential amino acids. If you eat a very well balanced diet that contain enough protein, फिर भी आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें प्रोटीन जो है वो आप सफिशिएंट ले रहे हैं, लेकिन ऐसे फैक्टर्स साथ में इन्वॉल्व हैं, जैसे इम्पेयर्ड अब्जॉर्प्शन, आप प्रोटीन सफिशिएंट ले तो रहे हैं लेकिन वो आपकी बॉडी में प्रॉपरली अब्जॉर्ब ही नहीं हो रही, अब्जॉर्ब हो गई है लेकिन वो इसिमिलेट नहीं हो रही, कोई ऐसा इन्फेक्शन आ जाता है कि आपकी टोटली बॉडी जो है वो उस इन्फेक्शन से कम्बैट करने के लिए प्रोटीन्स बना रही है, कोई ट्रॉमा, कोई स्ट्रेस, कोई ऐसा ड्रग यूज के आपकी वो प्रोटीन जो है वो अब्जॉर्ब ही नहीं हो रही, इम्बैलेंसेस ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा प्रोटीन डाइजेशन में जो इन्वॉल्व हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स अगर जो हैं वो नहीं मौजूद होंगे तो परेशानी हो सकती है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ अमाइनो एसिड्स एक प्रॉब्लम है, और अवेलेबिलिटी होने के बावजूद अदर फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। मतलब एक हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए आपको सिर्फ हेल्दी डाइट नहीं चाहिए, आपको एक हेल्दी सेटअप चाहिए, आपको एक हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए, आपको एक कंप्लीट सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कॉपर जो है किसी भी प्रोटीन की सिंथेसिस को कैटलाइज कर रही है, तो आपके पास अमाइनो एसिड्स भी हैं, आपके पास आपका जेनेटिक कोडिंग भी है, लेकिन जिसने उस प्रोटीन सिंथेसिस को कैटलाइज करना था, आपके पास वो कॉपर मौजूद नहीं है, तो वो प्रोटीन बनेगी नहीं। सो एक कंप्लीट सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है। अच्छा जी, सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ अ डाइट डेफिशिएंट इन अमाइनो एसिड इंक्लूड रिड्यूस्ड एनर्जी लेवल, मेटाबॉलिज्म, स्लीपिंग डिसऑर्डर। ये सारे जो हैं वो एक्सट्रीमली डेट्रीमेंटल है किसी भी इंडिविजुअल की वेलबींग के लिए। सो बैलेंस इनटेक ऑफ अमाइनो एसिड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हैं वो वाइटल, ये तो ऑलरेडी आपको बता दिया। जनरल स्ट्रक्चर्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। एक तरफ अमाइनो ग्रुप होता है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, सेंटर में हमारे पास एक जो है वो अल्फा कार्बन होती है, एक हाइड्रोजन ऐड होती है अटैच उसके साथ, और एक आर ग्रुप होता है। सारे का सारा अमाइनो एसिड सेम है, द डिफरेंस विल बी इन दिस आर ग्रुप। ये वेरिएंट है, अगर ये जैसे जैसे ये वेरी करेगा, अगर यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा तो हमारे पास सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन आ जाएगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा तो हमारे पास अमाइनो एसिड जो है वो एलानिन आ जाएगा। अगर यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप आ जाएगा तो हम वो उससे CH के साथ अगर एक फिनाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन उतार के, तो वो हमारे पास फिनाइल एलानिन आ जाएगा। सो दिस वेरिएंट will describe the type of amino acid then. Carbon is the alpha carbon and the distinct R groups. The distinguish one amino acid from another that are also attached to the alpha carbon, except in case of glycine where the R group is hydrogen. Glycine में हमारे पास R ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन है। ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, ग्लाइसिन यहाँ पर भी H है तो ये एक ग्लाइसिन अमाइनो एसिड होता है। अच्छा जी, द फोर्थ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द टेट्राहेड्रल अल्फा कार्बन ऑफ अमाइनो एसिड इज हाइड्रोजन उसमें, ठीक है। अच्छा जी, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं, अमाइनो एसिड आर जनरली डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड चेन। The most helpful start point in term of resulting property is to separate amino acid into जो पोलर साइड चेन्स हैं, जो नॉन पोलर साइड चेन्स हैं, देन डिवाइडेड द पोलर अमाइनो एसिड्स को जो एसिड्स डिपेंडेंट अपॉन एनी चार्ज दैट आर आर ग्रुप माइट कैरी, ठीक है। द रेस्ट ऑफ ईच अमाइनो एसिड इज द सेम एक्सेप्ट फॉर प्रोलीन, इट इज ओनली द आर ग्रुप्स दैट डिफर्स। प्रोलीन के अलावा बाकी सब में सिर्फ आर ग्रुप डिफरेंट है, बाकी सब सेम है।
राइट। नॉन पोलर अमाइनो एसिड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस के हैं, दे आर बेसिकली 9 एसिड्स अंडर दिस क्लासिफिकेशन: glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, methionine, proline, phenylalanine, tryptophan. The non-polar amino acids are characterized by having only carbon and hydrogen in their side chain. जो non-polar हैं amino acid, उनकी side chain में सिर्फ C, कार्बन और हाइड्रोजन होगी बस। साइड चेन में चाहे वो मिथाइल हो, इथाइल हो, वट एवर, यानी ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है साइड चेन में। ये अनरिएक्टिव होते हैं, मोस्टली अनरिएक्टिव हैं तो मीन नॉन पोलर है, नॉन पोलर हैं तो मीन हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, स्टेबल से होते हैं, जो स्टेबल से होते हैं ना, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव, तो नॉन पोलर होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। तो फिर जाहिर बात है जो नॉन पोलर और अनरिएक्टिव होते हैं वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते। They tend to cluster on the inside of the molecule. The simplest amino acid, glycine, which has a single hydrogen atom at its side chain, alanine, valine, leucine, isoleucine have saturated hydrocarbon R group have only hydrogen and carbon linked by single covalent bonds. Leucine and isoleucines are isomers of each other. The side chain of methionine and cysteine includes a sulfur-containing amino acid, दो ही हैं, methionine and cysteine. सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जहाँ भी हम जिक्र करते हैं सल्फर कंटेनिंग, ये तो फिंगर टिप्स पे होना चाहिए आपके कि मैथियोनिन एंड सिस्टीन जो है ये सल्फर कंटेनिंग है। पोलर भी हैं और अनचार्ज भी हैं, ठीक है। हैव हाइड्रोक्सिल अमाइड और थायोल ग्रुप। There are 6 amino acids: serine, threonine, asparagine, glutamine, tyrosine, cysteine. These are amino acids that possess oxygen, sulfur, nitrogen. यानी इनकी साइड चेन में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन भी है, इसलिए ये पोलर हैं। दे कैन नॉट हैव देयर आर ग्रुप आयोनाइज्ड एंड दस डू नॉट कैरी एन ओवरऑल चार्ज। इनकी साइड चेन जो है वो तो पोलर है, लेकिन ओवरऑल ये इनकी जो है वो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज नहीं होता, ऑल्दो इसकी साइड चेन जो होती है वो पोलर होती है। द पोलर नेचर ऑफ द साइड चेन मीन दीज अमाइनो एसिड readily interact with water, they are hydrophilic. Charged amino acid with polar sides, साइड पोलर चेन भी साइड है और ओवरऑल भी उनके ऊपर चार्ज है। दे आर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज। 5 अमाइनो एसिड कंट्रीब्यूट करते हैं, लाइसिन है, आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है, स्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। पोलर अमाइनो एसिड विद पॉजिटिवली चार्ज से साइड चेन में हमारे पास लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन आएंगे, और जो पोलर अमाइनो एसिड नेगेटिवली चार्ज हैं वो दोनों एसिड हैं, जिसमें स्पार्टिक एंड ग्लूटामिक है। क्लासिफिकेशन डाइटरी रिक्वायरमेंट्स की भी ओवरऑल 300 अमाइनो एसिड नेचर में अकर करते हैं, लेकिन 20 अमाइनो एसिड जो हैं वो हमारी डाइटरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। All amino acids are required by the body, but some are known indispensable, nutritionally essential, जो कि हमारी डाइट में बड़े ज़रूरी हैं, और बाकी के they cannot be synthesized in the body. Their deficiency disturbs nitrogen equilibrium, growth, nutrition maintenance, and lifespan. In the human body, the liver produces about 80% of the amino acid needs, यानी वो जो हमारे non-essential हैं. The remaining 20% must be obtained from the diet. These are called as essential amino acid. There are 10 essential and 10 जो है वो non-essential हैं। इसीलिए इनको हम जो है वो इंडिस्पेंसिबल कहते हैं, नॉन एसेंशियल को। दीज अमाइनो एसिड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, बट दे आर मोर इम्पॉर्टेंट टू द cell than the essential ones. The others are alanine, asparagine, aspartate, glutamate, glutamine, glycine, proline, and serine. These are formed from amybolic intermediates by short anabolic pathways, are from other dietary amino acids. ठीक है, the fact that they are termed non-essential does not mean that they are not necessary. I have already told. They need not necessarily be obtained through the diet because the body can manufacture them. Non-essential amino acids can become essential under certain conditions. For example, आपकी बॉडी जो है कोई अमाइनो एसिड जो है उसको बनाना बंद कर देती है, या वो बॉडी के अंदर उस अमाइनो एसिड को बनाने का पाथवे डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सम अमाइनो एसिड, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सम न्यूट्रिएंट, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सम मिनरल। तो क्या होता है कि वो एसेंशियल हो जाता है कि फिर वो डाइट के थ्रू जाए। If methionine and phenylalanine are not available in sufficient quantities, cysteine then become essential in the diet. ठीक है, अगर बॉडी के अंदर मेथियोनिन एंड फिनाइलएलानिन की कमी हो जाए तो सिस्टीन एंड टायरोसिन कम से कम आपकी डाइट में होने ज़रूरी हैं।
Proteins from different sources, they considerably in the quality and quantity of their amino acid content. ठीक है, प्रोटीन जो होती हैं वो अपने सोर्सेज की बेस पर जो है वो क्लासीफाई की जाती हैं कि उनमें एसेंशियल अमाइनो, मोस्टली जो एनिमल प्रोटीन हैं जो वो उनमें एसेंशियल अमाइनो एसिड की क्वांटिटी खासी होती है. अच्छा, काइंड प्रोटीन्स कंटेन सब्सटेंसेस इन एडिशन टू अमाइनो एसिड्स, देयर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आर डिटरमिन्ड लार्जली बाय अमाइनो एसिड्स जो उसके अंदर प्रेजेंट है. अब प्रोटीन की क्वालिटी आप कैसे बताते हैं? आप कैसे बताएंगे कि ये प्रोटीन है गुड क्वालिटी प्रोटीन है और ये प्रोटीन जो है वो पुअर क्वालिटी प्रोटीन है? तो एक तो काइंड ऑफ अमाइनो एसिड जो उसके अंदर प्रेजेंट है, अगर तो उसके अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है, दैट इज़ गुड क्वालिटी प्रोटीन. फिर वो ऑर्डर इन विच दे लिंक टुगेदर, अगर आर दोज एसेंशियल अमाइनो एसिड्स विल बी deliberated to the body या assimilated in the body easily. ठीक है, स्पेशल रिलेशनशिप ऑफ वन अमाइनो एसिड टू एन अदर. ठीक है, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ इतना स्ट्रांगली बॉन्डेड तो नहीं है कि वो बॉडी को अवेलेबल ही ना हो. फर्स्ट क्लास ऑफ प्रोटीन्स ऑफ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू कंटेन ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड. सो फर्स्ट क्लास प्रोटीन जो कि जिनकी बायोलॉजिकल वैल्यू एक्चुअली उस प्रोटीन की हाई होती है, जिसकी जो कि सारी की सारी आपकी बॉडी में सिमिलेट हो जाए, आपकी सारी की सारी बॉडी में यूटिलाइज हो जाए और उसका कोई भी पार्ट जो है वो डी अमाइनेशन प्रोसेस के थ्रू जो है वो ग्लूकोज या फैट में कन्वर्ट ना हो. सो वो प्रोटीन जिसमें तमाम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आपकी बॉडी में डिप्लीट हो जाती हैं, सिमुलेट हो जाती हैं. उन प्रोटीन को गुड क्वालिटी प्रोटीन कहते हैं और मोस्टली जो गुड क्वालिटी प्रोटीन होती हैं वो एनिमल सोर्स से ही आती हैं. So such proteins are capable of providing growth and maintenance. Almost all animal proteins, gluten of wheat and glutalin of maize belong to this class. लेकिन ये ग्लूटन ऑफ व्हीट में भी कुछ इश्यूज आ जाते हैं, फिर ये वैरायटी पे भी डिपेंड करता है किस व्हीट की वैरायटी है, इसलिए मोस्टली हम इसको इस कैटेगरी में नहीं लाते. लेकिन जो है एट टाइम्स जो है एज़ कम्पेयर टू आपकी जो लेग्यूम्स हैं, आपकी जो पल्सीज हैं, उनकी निस्बत फिर भी ये बेहतर होती है. सेकंड क्लास प्रोटीन ऑफ लो बायोलॉजिकल वैल्यू आर डिफरेंट इन सम ऑफ द एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड अनसुटेबल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस. Generally, most of the vegetable origin proteins and gelatin of animal origin fall in this category, मतलब poor quality. कुछ अमाइनो एसिड जैसे ग्लाइसिन एंड ग्लूटामिक एसिड appear to be involved in the transmission of impulses in the nervous system. इम्पॉर्टेंस ये है कि बिल्डिंग इम्पॉर्टेंस पता ही है आपको, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स हैं अमाइनो एसिड्स. 16% नाइट्रोजन होती है उनके अंदर केमिकली. दिस इज़ वट डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम अदर टू बेसिक न्यूट्रिएंट, मतलब कार्बोहाइड्रेट और फैट से डिस्टिंग्विश करती है कि प्रोटीन के वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स हैं या ऑक्सीजन आ जाती है उनके अंदर. हाइड्रोकार्बन्स मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बने हैं, जबकि प्रोटीन है इसके अंदर नाइट्रोजन होती है. To understand how vital amino acids are, you must understand how essential proteins are to life. If it is essential कितनी है कि हमारी सारे के सारा hereditary material है that is meant to make only proteins. Every living organism from the largest animal to the tiniest microbe is composed of protein. In its various forms, protein participates in the vital chemical processes that sustain life. Every second in the bone marrow make 2.5 million red cells. Every 4 days, most of the lining of the gastrointestinal tract and the blood platelets are replaced. एवरी 4 days, हर 4 दिन में के बाद आपके जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक और ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं वो रिप्लेस होते हैं. तो जो नए बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? वो यही प्रोटीन्स जो हैं वो उनको बनाती हैं. मोस्ट ऑफ द वाइट सेल्स आर रिप्लेस्ड इन 10 days. person has the equivalent of new skin in 24 days and bone collagen 30 years. All this continuous repair work requires amino acids. Proteins are a necessary part of every living cells in the body. Next to the water, protein makes up the greatest portion of our body weight. In the human body, protein substances make up the muscles, ligaments, tendons, organs, glands, nails, hairs, and many vital fluids, and are essential for the growth of bones. The enzymes and hormones that catalyze and regulate all bodily processes are protein. सो ये सारी इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन के ऊपर जो है वो आपको बताया गया है. यू कैन रीड इट एंड यू कैन आफ्टर रीडिंग यू कैन इवन री write it for your information, for your understandings.
Amino acid as a protein substrate. Proteins are chain of amino acid linked together by what are called peptide bonds. Each individual type of protein is composed of a specific group of amino acid in a specific chemical arrangement. It is particular amino acids and the way in which they are linked together in sequence that gives a protein that make up the various tissues their unique function and characteristics. ठीक है, एक प्रोटीन जो है उसमें अमाइनो एसिड, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, वो उसको यूनिक बनाता है। ठीक है, ईच प्रोटीन इन द बॉडी इज टेलर्ड बाय स्पेसिफिक नीड। प्रोटीन्स आर नॉट इंटरचेंजेबल, कि एक अमाइनो एसिड अगर एक जगह पर चाहिए था तो अगर दूसरी जगह पर कोई अमाइनो एसिड चाहिए हो तो वो कहे कि रुको ज़रा मैं वो वाला नहीं। दे आर स्पेसिफिक फॉर देयर रिएक्शन, दे आर स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट। दी प्रोटीन दैट मेक अप द ह्यूमन बॉडी आर नॉट obtained डायरेक्टली फ्रॉम द डाइट। मतलब हमने अगर गोश्त खाया तो ऐसे नहीं है कि वो जाके हमारे जो है वो हमारे मसल्स का हिस्सा बन जाएगा, नहीं, पहले वो टोटली ब्रेक डाउन होगा, देन सेल्स विल टेक देम अप एज एन अमाइनो एसिड एंड देन दे विल रीबिल्ड द प्रोटीन। रादर डैट, ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही बताया गया है यहाँ पे कि डाइटरी प्रोटीन इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड which then body uses to build specific protein it needs. Thus, it is the amino acid rather than proteins that are essential nutrients. Amino acid metabolism क्या होता है? There are other amino that are important in metabolic functions such as citrulline भी amino acid है, glutathione भी amino acid है, ornithine भी amino acid है, taurine भी। ये similar हैं या by products in protein building amino acid. सम एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर एज आर एज अ प्रिकर्सर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, या तो वो खुद न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे एक्ट करते हैं या वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के प्रिकर्सर्स हैं, यानी न्यूरो ट्रांसमीटर्स का रॉ मटेरियल है। Certain amino acids are thus necessary for the brain to receive and send messages. Amino acids are also enable vitamins and minerals to perform their jobs properly. Even if vitamins and minerals are absorbed and assimilated by the body, they cannot be effective unless the necessary amino acids are present. For example, low levels of amino acid tyrosine may lead to iron deficiency. Okay, ji. Amino acid protein assembly process. The processes of assembling amino acid to make proteins and of breaking down proteins into individual amino acids for the body use are continuous one। ठीक है, पहले जो है वो ब्रेक डाउन हो रही है और बन रहे हैं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, B6 भी इसमें उतना ही इम्पॉर्टेंट है, यानी बहुत सारे वो तमाम जो रिएक्शंस कैटलाइज होते हैं उसमें बहुत सारे मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। बहुत सारी प्रोटीन्स की मेकिंग में जो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में बहुत सारी मिनरल्स अटैच होती हैं, जैसे आपके हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन जो है इसकी कोर जो है वो आयरन की है। आपकी इंसुलिन की कोर जो है वो जिंक की है। अगर जिंक और आपकी आयरन नहीं होगी तो आपका हीमोग्लोबिन या इंसुलिन नहीं बन सकेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? अमाइनो एसिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं विद सरप्राइजिंगली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। It is difficult to pin the melting points down exactly because the amino acids tend to decompose before they melt. मेल्टिंग से पहले पहले ये डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोजिशन एंड मेल्टिंग टेंड टू बी एट 200 to 300, यानी ये बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं। इन जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, इट हैज़ बोथ अ बेसिक अमाइन ग्रुप एंड एसिडिक कार्बोक्स। इसलिए जो होता है ना ग्लाइसिन, ये एम्फोटेरिक होता है, मतलब ज्विट्रॉइन होता है कि ये इसके ऊपर एट अ टाइम पॉजिटिव चार्ज भी होता है और एक नेगेटिव चार्ज भी होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज ज्विट्रॉइन। This is a form that amino acid exists in even in the solid state. Instead of weaker hydrogen bonding and other intermolecular forces, they might have expected actually have much stronger ionic attractions between one ion and its neighbors. These ionic attractions take more energy to break, and so the amino acids have high melting points. सॉलिबिलिटी कितनी है? ये जनरली वाटर में सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। This again reflects the presence of zittrions in water. The ion attractions between the ions in the solid amino acids are replaced by strong attractions between polar water molecules and the zittrons. This is much the same as ionic substances dissolving in water. The extent of solubility in water varies with the R group. The lack of solubility in non-polar organic solvents such as hydrocarbon is because of lack of attraction between solvent molecules and the zwitterons.
Without strong attractions between solvent and amino acid, there won't be enough energy to pull the ionic lattice apart. ठीक है, क्या होता है कि आपस में जब तक सॉल्वेंट की अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होगी टूवर्ड्स द विट्रॉइन, उस वक्त तक जो है वो आपकी जो ये आयनिक लैटिस है ना, उसका मतलब अमाइनो ग्रुप है, अल्फा कार्बन है, आर ग्रुप है, ये इसको डिसॉल्व करना बड़ा मुश्किल है, इसको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल है। ऑप्टिकल एक्टिविटी की जहाँ तक बात आती है कि एक अमाइनो एसिड के अंदर का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कार्बन एट द सेंटर हैज़ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड। एक तरफ आर है, एक तरफ कार्बोक्सी, एक तरफ अमाइनो, एक तरफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन अटैच है, इसलिए इसको हम अल्फा कार्बन भी कहते हैं। दिस इज इक्वली ट्रू इफ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द विट्राइन इंस्टेड ऑफ दिस सिंपलर स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ दीज 4 डिफरेंट ग्रुप्स सेम कार्बन एटम अमाइनो एसिड्स आर कायरल, ठीक है। द लैक ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये देखें, कायरल मीन के एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक आर ग्रुप है, और अगर ये पोलर है तो ये, अब ये चारों जो हैं ये इनकी अपनी अपनी डायरेक्शन है, तो अगर इसको आप 3D में देखें ना तो आपको ये एक प्लेन में नज़र नहीं आएंगी तीनों चीज़ें सिवाय वो उसके ग्लाइसिन के, जिसमें ये आर ग्रुप हाइड्रोजन है, वो ये फिर ये दोनों हाइड्रोजन एक प्लेन में होगी और ये डिफरेंट प्लेन्स में होंगी। So the lack of plane of symmetry means that there will be 2 stereoisomers of amino acid, ठीक है। ग्लाइसिन के अलावा 2 stereoisomers पॉसिबल है, मतलब उनके जो है वो मिरर इमेजेस। जनरली अल्फा अमाइनो एसिड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ऑल द नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैव द राइट हैंड स्ट्रक्चर इन दिस डायग्राम, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये COOH इधर होता है, R चेन इधर होती है, और NH जो होता है वो ऐसी इसकी L कन्फिग्रेशन बनती है। दिस इज नोन एज L कन्फिग्रेशन, अदर वन इज D। ये हमने कार्बोहाइड्रेट्स में भी पढ़ा था ना, L कन्फिग्रेशन और D कन्फिग्रेशन का। L configuration can be recognized by imaging to look down from above the structure with H towards U। जो ये C है ना, इसका ये C है, इसके बिल्कुल ऊपर H है, H आपके सामने है, ठीक है। अगर 3D में अगर इसको देखें, इफ यू रीड अराउंड द अदर ग्रुप्स इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट विल गेट वर्ड कॉर्न, CORN, इस तरह से बनता है, CORN। अगर आपने एक इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर पढ़े। All the naturally occurring amino acids have the same L configuration, but they include examples which rotate the plane clockwise and those which do the opposites. Alanine, cysteine, tyrosine, ये प्लस माइनस का साइन जो होता है ना, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो घूम जाता है ड्यू टू पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ऑन आर, तो वो जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन आता है इसके ऊपर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं अल्फा अमीनो एसिड्स की। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जो है ये कंडेंसेशन से बनता है बिटवीन टू अमीनो एसिड विद द रिलीज ऑफ वन वाटर। peptides are small consisting of few amino acids, a number of hormones and neurotransmitters are peptides, मतलब एक long peptide chain they that can act as protein, that can act as hormone, that can act as neurotransmitter। ज़रूरी नहीं है कि उसका टर्शरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है, ये आपके बाल हैं, दीज आर एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ओनली, इसमें आपके पास टर्शरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर नहीं है। जबकि आपका हीमोग्लोबिन है वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है, इंसुलिन क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड ग्रेटली डाइवर्जेंट लेंथ, मतलब डिफरेंट 10 अमाइनो एसिड पे मुश्तमिल एक पेप्टाइड चेन जो है वो एज अ होल कोई ना कोई काम कर रही होगी। अगर आप 151 अमाइनो एसिड पे मुश्तमिल जो हैं वो 2 चेन्स मिलके जो है इंसुलिन बनी हुई, तो बहुत डाइवर्जेंट हैं, बहुत ही डाइवर्सिटी है इस चीज़ में। Presence of a carbonyl group in a peptide bond allows electron resonance stabilization to occur such that a peptide bond exhibits rigidity like the typical COOC bond, ठीक है। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड जो है ना, ऑल्दो ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में होता है, लेकिन इसकी रिजिडिटी सेम होती है जैसे आपकी कार्बन कार्बन बॉन्डिंग की होती है। एसिड बे आपको इसकी ना केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बाद में करवाऊंगी, अभी तक सिर्फ आप इसकी फिज़ियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ और अमाइनो एसिड के जो है स्ट्रक्चर्स वगैरह याद करें। ये एसिड बेस्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड, बल्कि तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।